उस एक स्टॉल के लिए हमने कोई 4-5 वैरायटी ऑफ चीज बनाए और एक पूरा चीज बोर्ड बना के वहां रखा और वो सब चीजें. And that was the first time ever we experimented with it, and it went so well that we decided to launch our own brand. Hi guys, welcome to another episode of the Kabir Kahani, where it is my job to bring out the stories of the passionate founders of Pakistan who had a certain passion about whether apparel, F&B, experiences, coffee, brownie, you name it. But they had one more thing. They had the courage to turn their passion into a business that brings to you guys great experiences, great food, great apparels. But one thing that is common among all of these guys, as always, is that they are producing the same quality or in many ways better quality products than what we import, and Pakistan is loving them. These are the people who we call are creating the new Pakistan. One such founder is with us today. Her name is Saira Minto, and she is the founder of People Tree. What is People Tree? People Tree produces cheese, and they are not your usual cheese जो आप ऐसे slices लेके इधर उधर से commercial Mhm. market से उठाते हैं. These are the cheese that we love. These are the cheese like garlic herb cheese है, feta cheese है, I think cottage cheese है, and we'll get into it. All kinds of cheese that she produced. But for me, as you guys know, I've lived in Australia for so long, so I got addicted to cheese. Brie and Camembert has been my favorite cheeses throughout my testing of dozens and dozens of cheeses. So I'll ask her when is she making them, and if she has them, I will be her regular customer. But our goal in this podcast is, as always, to bring out her inception story, her habits, and how she approaches the market, how she sees the market. So you guys who are consuming the podcast are able to find inspiration, find some techniques, find some courage to start your own passion projects as well. And as always, on Kabil Kahani, Kabil.school, you'll find the case study and the podcast as you're watching here on YouTube as well. Saira, welcome to the show. How are you doing? Hi, I'm well. How are you? Saira, we were telling you before as well, but I'll tell you again. We love the background that you have. It basically already tells us that you are a woman of passion. You love collecting things that have a certain soul in them. Yes, I mean, all that I can say about this is, as we were talking before the podcast, that it is a labor of love. And I've over a period of time, I've been traveling and collecting all of this. And so when I built our own house, this was the perfect place to display them. And they are just there. I mean, there is, I'm not displaying them as, in a manner that for other people. It's basically for my own pleasure that I have them there. अमेजिंग. सारा, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हुई है, विच इज बेसिकली दैट आई लव चीज इन वेरी डिफरेंट वेज. मेरा सुबह जो स्क्रैम्बल्ड एग भी जो आई आई हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट, उसमें भी कोई ना कोई चीज जानी चाहिए, उससे लेके ऑफ कोर्स इन डिफरेंट वेज. बट at night when I'm craving something, I usually go for something like a brown bread, the slice of bread with a feta cheese, or agar brie available also. Brie is one of my favorites. I want to ask you, when what is the earliest memory you have that you started becoming fascinated with the world of cheese? So, Vakas, cheese is something that was always there in the kitchen. When we were kids, our mother used to make cheese at home, जिसको आप पनीर कहते हैं. सिंपल पनीर वो बनाती थी और घर में भी बनता था, और अगर घर में नहीं कभी बन सकता था तो बाजार से आता था. My father introduced us to cheddar cheese, which used to be his favorite, and हालांकि उसका जो फ्लेवर है वो बड़ा स्ट्रांग होता था बच्चों के लिए, but we used to love it. And then at one point when we were all married and settled in our own homes, Ammi started making cheese, and she said that she wanted to do a commercial project out of it. And so she started making it, and she started giving it to some friends and family. And तो कुछ कुछ वो थोड़ा सा उनकी मैंने मदद की कि वो उसको कोई प्राइसिंग कॉस्टिंग करें, और फिर
मगर वो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए उन्होंने चलाया, क्योंकि हम लोग अपने अपने, मैं कराची में थी, माय सिस्टर लिव्स इन अमेरिका, माय ब्रदर वाज बिजी विद हिज ओन थिंग्स, तो वो नहीं चल सका। ये कह लें उनके पास पूरा कोई रिसोर्स नहीं था टू टू यू नो पुट अप द प्रोजेक्ट फुली। सो फिर क्या हुआ कि बहुत साल गुजर गए इस बात को, और फिर मैं आई वाज इन आई एम एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट। आई वर्क इन अ स्कूल। तो उसमें काम करते करते मुझे ये ख्याल आया कि भाई ये तो है, लेकिन food and cooking is something that really really is my first love. एंड अभी भी कुछ कुछ अनवाइंड करना हो, कुछ भी कोई क्रिएटिव होने का मूड हो, तो मैं कुकिंग ही कर रही होती हूँ। सो देयर वाज दिस फूड फेयर कमिंग अप इन लाहौर। उन्होंने अपने इनवाइट्स भेजे कि अगर किसी ने कोई स्टॉल लगाना हो तो लगाएं, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई जिसमें चीज़ भी था। और भी चीज़ें थी, बेक्ड गुड्स थी, लेकिन चीज़ वाज वेरी वेरी वेल रिसीव्ड। तो बहुत लोगों ने चीज़ को पसंद किया, और मैंने उस वक्त ये किया क्योंकि इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इतने सारे मिलते नहीं हैं। अगर आप इंग्रेडिएंट्स बाहर वाले इंपोर्टेड लेना शुरू करें तो आपकी सारी कॉस्टिंग ही आउट हो जाती है। तो इस वजह से आई डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विद प्लेन चीज, कॉटेज चीज। तो उसमें वो बना के, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हमने बनाए, और वो एक, अभी भी मैं कभी सोचती हूँ, इट्स अबाउट 5 years अगो कि हमने ये काम किया था, कि वो एक उस एक स्टॉल के लिए हमने कोई 4-5 वैरायटी ऑफ चीज बनाए, और एक पूरा चीज बोर्ड बना के वहां रखा, और वो सब चीजें। And that was the first time ever we experimented with it, and it went so well that we decided to launch our own brand. And at that time the brand was named Khas Cheese, और वो मेरी अम्मी का ही जो ब्रांड था उसी को हमने कंटिन्यू कर लिया। लेकिन फिर उसके अंदर एक साल चला, अल्फता स्टोर्स में बेचा। अल्फता स्टोर्स में भी लोगों ने पसंद किया, विद जीरो एफर्ट, जीरो मार्केटिंग एफर्ट, जीरो एफर्ट टू डू एनी फैंसी पैकेजिंग। मैं ऐसे ही फूड रैप में बंद करके ऊपर लेबल लगा के भेज लेती थी। उसमें कुछ ना कुछ टेक ऑफ शुरू हो गया उसका। So at that point, my brother and I thought that this could be a serious thing that we do. And so my brother was really scared of getting into food business, because he said that एक दफा कुछ गड़बड़ हो गई और किसी को बुरा लगा, और उन्होंने कहना है कि ये तो, इसको तो बिल्कुल खत्म करो, ये तो, so हम we can't do this. But I was the one who said कि no, let's just start off and let's see how it goes. सो वो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमने फिर अपनी कंपनी का नाम रखा, वी रियलाइज दैट, सो वी वांटेड टू डू एवरीथिंग लीगली, बाय द बुक। हर चीज करनी है, कंपनी को रजिस्टर कराना है, और आपका जो ब्रांड है वो भी रजिस्टर होना चाहिए, और ये वो। सो जब हमने खास चीज को एक्सप्लोर किया तो हमें पता लगा कि वो तो बहुत से लोगों ने खास चीज, खास फूड्स, खास मार्केटिंग, खास फुला। So then we decided कि नहीं, we have to have a new name. So we decided upon People Tree. People Tree में people is that people tree जो होता है, पीपल का दरख्त जो कि हर जगह से निकल आता है, और आप जहां जाते हैं पुराने घरों की ईंटों में से भी पीपल का दरख्त उग रहा होता है। और so I had that in mind, that something which is everywhere and everybody is consuming it, and it's seen everywhere. So मेरे दिमाग में ये था, but then हमने इसको थोड़ा सा प्ले किया इसके नाम के साथ, और उस पीपल को हमने पीपल का ही बना दिया, और वो फिर पीपल ट्री बन गया। So ये हमारी पीपल Yep. ट्री की, it was born that way. What a good name play. What a good name play. आज आपने स्टोरी एक्सप्लेन की है तो समझ आई है कि where does the name People Tree came. It's Right. uh, मुझे बताएं, because it purely seems like a passion product. Like पहले से आंटी ने भी कोशिश की थी करने की, आपने थोड़ा बहुत उनके साथ हेल्प किया था. Now you also knew that you know this. But एक बहुत बड़ा टाइम होता है जब आप बिजनेस में या कोई भी चीज कमर्शियल लेके जा रहे होते हैं, आप थोड़ा सा मार्केट स्टडी करते हैं. तो हम्म। आपको नहीं उस वक्त आपने सोचा कि की मार्केट स्टडी एंड देन डिसाइडेड माय प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड फॉर ऑल द आउटलेट्स, या फिर आपने की नहीं बिकॉज इट वाज सो मच पैशन, यू लाइक
I know like what I'm making. It doesn't exist because if it had existed, I would be consuming it myself as well. So now that it probably doesn't exist. So maybe hundreds and thousands of people might want it. So what was the market landscape and how you approached it? अच्छा देखो, ये एक इंट्यूटिव चीज थी कि मुझे ये पता था कि अभी तक फ्लेवर्ड चीज कोई नहीं बना था। सो जब से मैंने चीज लोकल चीज कॉटेज चीज खाना शुरू किया तो पाकिस्तान में लाहौर में हर जगह वो एक ही चीज मिलता था जो कि बहुत रबरी होता था, और अभी भी है वो। और एंड इट इज priced so low that now that we make this cheese and we market it, we are unable to understand how they sell it at such a low price. And so what do they do? We don't know how they make it. And once I was so curious that I decided to send somebody over as somebody who would apply to be their laborer and find out how they make it and what is their Perfect. recipe. Because Intelligence हाँ gathering, intelligence हाँ gathering. तो बिल्कुल ना, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं पता लगता कि वो क्या करते हैं। सो एनीवे मुझे ये था कि फ्लेवर्ड चीज और सॉफ्ट चीज और रिकॉटा और फेटा ये यहाँ पर अभी लोकली कोई नहीं बना रहा, बट आई कुड ओनली एक्सपेरिमेंट विथ चीज जो एज्ड ना हो। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एजिंग का कोई वेरविदौल नहीं था कि मैं उसको कैसे एज करूंगी, कैसे मैं उसको एक ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पे उसको फंगस ना लगे और वो एज भी अच्छे तरीके से हो, वो कुछ नहीं था। So I had to do it to something which was done with fresh cheese. So वो fresh cheese के साथ flavoring I had not seen in Pakistan, and it was indeed not there at that time, about 5 years ago. And I knew that this is going to be a product for people who wanted something pure. I wouldn't say organic because organic is a very misused term here in Pakistan. कुछ organic नहीं हो सकता यहाँ पे हमारे ग्रो और मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों में, बट people call things that are pure and additive free, उनको वो organic कह देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो बिल्कुल प्योर है, एडिटिव फ्री है। और इस तरह की चीजों को वही लोग लेंगे जो अवेयर हों फूड चॉइसेस से, जिनको क्लीन फूड खाना हो और थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उस चीज में ये था कि मार्केट छोटी है, ऐसे लोग अवेयर जो होंगे वो कम हैं। लेकिन पहले शुरू में हमने सिर्फ फ्लेवर्ड चीज बनाया, और फ्लेवर्ड चीज की मार्केट और भी कम थी। और फिर बाद में मुझे very soon I realized that I'm missing out on a big chunk of market because a lot of people buy paneer to do several things at home, and I don't know what they do with it, but they do buy it. And let's just capture that market. वही वाला जो हमारा पुराना कम कीमत वाला रबरी पनीर है, उसकी बजाय हम क्यों ना थोड़ी सी महंगी कीमत का तो होगा, लेकिन I thought that people would like to buy quality, एंड जब वो खाएंगे तो उनको खुद ही फर्क पता लगेगा, एंड वी कैन एक्चुअली एंगेज सेवरल कस्टमर्स विद आवर प्लेन चीज। सो प्लेन चीज के ब्लॉक्स हमने बाद में बनाने शुरू किए, एंड दे आर आवर बेस्ट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सबसे ज्यादा टर्नओवर उन्हीं का है। And सो दिस when you say plain cheese, you mean the cottage cheese जो होती है. cottage we are doing cottage cheese, or we do ricotta. We do cottage cheese, we do ricotta, and we are also experimenting with feta. और इन्हीं में हम flavors बनाते हैं। I have a very personal curious question जो my wife has been asking me for like 5 years now, or 2.5 years roughly now that she's my wife, but she's been asking for a while. पाकिस्तान में पालक पनीर, बटर पनीर, शाही पनीर, इसका कल्चर क्यों नहीं है, जबकि हम लोग सारे देसी बाहर जाके ये बहुत ज्यादा खाते हैं, क्यों रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल नहीं होता? एंड कॉटेज चीज उस तरह नहीं है, घरों में नहीं बन रहा पालक पनीर, बटर पनीर, जबकि ये तो बहुत टेस्टी खाना है। वाई? आई नो। हमारे टेस्ट बड्स ही नहीं है। पालक पनीर अब कुछ कैच ऑन कर गया है। अगर आप कभी जाएं, मैंने देखा है कुछ दावतें होती है ना, ये जो शादियों की, लाइक वलीमा या कोई, इसके लिए जो लोग वो केटरिंग करते हैं। तो एक दफा हम्म। हमें किसी ऐसे इवेंट मैनेजर ने जो कि किसी वलीमे की दावत कर रहा था, उसने हमसे पनीर खरीदा बल्क में, कि हमने वो बनाना है।
सो शायद कहीं पालक पनीर, मैंने और भी जगहों पे ये देखा है, रेस्टोरेंट्स करते हैं, दीज लोकल hotels that have come up, like Nishat, for example, they do a lot of palak paneer in their events. So वो करते हैं, लेकिन पता क्या, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो मेन इवेंट है ना आपका फूड में, वो मीट के बगैर नहीं हो सकता। उसमें अभी भी इवन आवर यंगर जनरेशन इज, आपकी जनरेशन भी जो है, वो मीट के साथ पार्टी करती है। जो जो है आपका, ये चीजें साइड है, ये साइड शो है। मतलब आप शाकुटरी बोर्ड बना लें, या आप चीज बोर्ड बना लें, या आप हमस बोर्ड बना लें, लेकिन उसमें वो चीजें जो हैं वो वैसे हैं, थोड़ी सी निबल वेबल करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। जो आपका फूड फूड है, दैट्स ऑल, कुन्ना एंड गोश्त रिलेट। आप ये देखें ना, ये जो हमारे शादियां होती हैं वन डिश वाली, उस वन डिश Yep. शादी में चावल होते हैं मुर्गी के साथ बने हुए, और साथ, मतलब शादी पे आपने इतने हैवी कपड़े पहने हैं, ज्वेलरियां पहनी हुई हैं, और उसके साथ कुन्ना पड़ा है, और आप वो शोरबा अपनी प्लेटों में डाल के खा रहे होते हैं। सो वहां पे भी जो है यही है। आई मीन दिस इज व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी हियर। और बाहर का, जहां तक आप कहते हो कि हम बाहर जाके बड़ा एंजॉय करते हैं, तो बाहर तो आप नॉवेल्टी के लिए गए होते हो ना, बाहर तो आप मजा करे होते हो, अच्छा जी चलो अब मुख्तलिफ चीजें खाएंगे और ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि इट कांट बी। मैंने एक वक्त में ये सोचा कि हम पनीर की बड़ी क्यूब्स बना के फ्लेवर करके, और क्यूब्स को ही पैकेट में बंद करके हम बेचेंगे, ताकि लोग पनीर टिक्का के लिए वो पैकेट उठा लें, और घर जाके सीधा सीधा बजाय इसके कि खुद काटे वाटे उसको इस्तेमाल करें। अब भी शायद हम कर दें किसी वक्त। We are still a home-based business, so when we want to expand or do something new, we have to think a lot about how it will come about. So True. yeah. No, I think you're absolutely right with your answer. ये कल्चर फैब्रिक है, एंड you're probably right. मुझे एक दो जगह पे पालक पनीर मेन्यू में एंटर होता नजर आ रहा है, एंड Hmm. आई एम वेरी बुलिश ऑन द फैक्ट, वेरी होपफुल एज वेल, कि पाकिस्तान में Mhm. पनीर का कल्चर आज इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ, स्पेशली कॉटेज चीज जो है ना, इट्स अ ग्रेट Hmm. सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। Right. इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू डाइट। Hmm. मुझे, all of us, most of our consumers, listeners, readers, we are on the other side of consumption. We Hmm. don't know how and why ricotta, feta, cottage, they are different from each other. So if you have to take us behind the scenes, चीज Hmm. ये वाली चीज कैसे बनती है, और कैसे कैसे ये डिफरेंशिएट होना शुरू होती है, कॉटेज ये है, रिकॉटा ये है, फेटा ये है, या सो ऑन, व्हाट गोज ऑन राइट। बिहाइंड द तो सीन? जो फ्रेश चीज है, जो फ्रेश डेयरी से चीज बनता है, डेयरी से ही सारा चीज बनता है दुनिया में। सो जो हम चीज बनाते हैं उसमें पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की रेसिपीज देखें, तो सवाए प्लेन कॉटेज चीज के, बाकी सब रेसिपीज के अंदर रेनेट डलती है। और रेनेट है जो उसको कोएगुलेट करने के लिए, जेल करने के लिए वो यूज करते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको ड्रेन करते हैं। हम कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते। सो हम सिर्फ वी प्ले विद द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क। सो इफ वी आर मेकिंग प्लेन कॉटेज, सो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमें उसमें एसिड, या जिसको हम लेमन, जो कोई भी एसिड, विच कुड बी विनेगर और विच कुड बी लेमन जूस, वो हम ऐड करते हैं। उसको फिर वो कर्डल करता है, फिर हम उसको उसको ड्रेन करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी अच्छी चीज जो पनीर की क्वालिटी अच्छी होती है, या उसके अंदर जो लशियसनेस आती है या सॉफ्टनेस आती है, वो इस तरह आती है कि आपने जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ पानी उसमें छोड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया, और वो बिल्कुल गीला नहीं है। सो वो एक चीज होती है जिसको आप मास्टर कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू यू नो यू कीप डूइंग इट, एंड देन वन डे, हमने भी बहुत गलतियां की, हमें ये नहीं पता था सांचे कैसे होने चाहिए, हमने अपनी हर चीज हमने अपनी इनोवेट की हुई है, हमने कोई प्री मेड चीजें नहीं ली। एंड आई थिंक आप ये भी अवेयर हो, खैर आई विल कम टू दैट लेटर। आपको भी मैं चीज के बारे में बताती हूँ कि ये जो है, इसको तो हम ऐसे करते हैं। तो आपका जो प्लेन कॉटेज चीज है, विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम्स, वो हम बेचते हैं। उसको हम इसी तरह से बनाते हैं कि एक टेम्परेचर पे आया, फिर हमने उसको वो कर्ड्स बना लिए उसके। फिर इसी तरह रिकॉटा, अगेन
टेम्परेचर के साथ कि दूध का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब आप उसको अंदर एसिड डालें. एंड देन फेटा इज द मोस्ट कहना चाहिए मुश्किल है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि हमारे चूल्हे जो हैं वो कोई ऐसे नहीं हो सकते कि अब आपने 65 डिग्रीज पे रखा हुआ है और वो फिर उतने पे ही है और फिर आपने उसको. सो हमें बहुत वो एक डिफिकल्टी से आप उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं. पाकिस्तान में ये चीजें बन रही हैं, बहुत लोग लार्ज स्केल पे बना रहे हैं, या तो वो फैक्ट्री में उन्होंने, मसलन एक आपको मैन्युफैक्चरर मैं बताती हूँ, फार्म फील्ड्स के नाम से, ये अल्फता स्टोर्स वालों ने अपना ब्रांड खोला हुआ. नाउ इफ यू गो, अच्छा एक और भी ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो भी आर्टिजनल चीज बनाते हैं अपनी उस पे, लेकिन उनके भी आप अगर बहुत सारे चीज उठा के खाएं तो आपको फ्लेवर एक ही मिलेगा. मतलब आपको उसमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा कि अच्छा अब इसने ये जो बनाया है क्या फेटा, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन कॉटेज. देयर इज नो डिफरेंस. सो फ्लेवरिंग जो है वो तभी फर्क होती है. एक तो फेटा में नमक पड़ता है, नमक भी हमें नहीं पता कि हमने कितना डालना है. तो हम, मेरा ख्याल है जो बाकी भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीख रहे हैं. तो आप अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत चीजें बनने लग गई हैं और वो फैशन प्रोडक्ट्स भी अपने लोग ले आए हैं और वो सब चीजें, वो दैट्स फाइन. बट नाउ वी आल्सो हैव दीज ह्यूज बिग कंपनीज who've seen this market, and now they are in that market, and a lot of people who are not aware of what these cheeses should be, इनकी असल फ्लेवर क्या होना चाहिए, वो बस उसका नाम पढ़ के उठा के ले लेते हैं, and they feel that they are having that. So the classic thing that happened recently was that मुझे किसी ने कहा कि आप मास्कापोनी बनाती हैं. तो मैंने उनको कहा कि मैं अभी नहीं बनाती, मगर मैं उसकी रेसिपी पे काम कर रही हूँ और जब वो सही होगा तो मैं आपको बताऊंगी, फिर वी विल स्टार्ट मार्केटिंग इट ऑल्सो. सो वो मास्कापोनी जो है वो तो उसके अंदर वो तो सिर्फ क्रीम से बनता है. जब आप, मैंने क्या किया कि मैंने लोकल मार्केट में जो लोग ये बहुत कमर्शियल बना रहे थे, मैंने उनके मास्कापोनी बाजार से मंगवाए टू टू चेक इट आउट कि व्हाट इज इट. एंड दे वर सो मिल्की एंड क्रीमी, जैसे कि सफेद रंग के बिल्कुल कमर्शियल सी कोई चीज बनी हुई है जिसका आप. और जब मैं खुद घर में बनाती हूँ मास्कापोनी क्रीम से तो वो एक बटरी, बिकॉज मास्कापोनी इज जस्ट क्रीम जिसमें आपने कुछ नींबू डाला होता है और उसको एक फ्लेवर मिल जाता है. वो टिरामिसू में बहुत इस्तेमाल होता है और टिरामिसू यहाँ पे बहुत पॉपुलर डिजर्ट है पाकिस्तान में. So everybody, all people who are running bakeries, they want it. So यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक गैप है. So हमारे जो चीज हैं, we play it safe. We want to do recipes and we want to do cheeses which we are confident about. That we are passing on the real flavors to people and there is no hanky panky. So ये है, इस तरह से हम करते हैं. No, very nice, very very मुझे nice लगा to hear. मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया आपको कि नहीं नहीं मैं. नहीं नहीं, longer is better. We are in the we are not in the business of social media. We're in the business of learning and education. So the longer is always better in that. Right, right. Uh, so I want to go back to 5 years ago. So that moment when आपने कहा फेयर एक लगना था, तो वहां पे हमने सबसे पहले अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके गए. सो लेट्स रन अस थ्रू दैट इन मोर डिटेल के एक तो कौन सा फेयर था, कहाँ पे था, और व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चार पांच लेके जाऊंगी, एक कॉटेज का ले जाऊंगी, फेटा चाय, और एंड देन विल जस्ट हैव पीपल टेस्ट इट. हाउ वर यू when you were not yet out there into the market as a proper business? How were you collecting the first let's say reviews or testimonials or feedback from the customers? So it was very interesting. Um, Me and my friends, मेरी तीन चार सहेलियां, और my brother, who's always been my very, big advisor and supporter in this and everything, but especially this one. हम लोगों ने सोचा खालिस फूड मार्केट का एक फेयर लगता होता है लाहौर में, जो आजकल मैंने इतना सुना नहीं है क्योंकि आई थिंक हरियाली इज टेकन ओवर मोर स्पेस. बट खालिस फूड मार्केट लगता था ये जेल रोड पे जो गैलरिया, एक वो है स्ट्रिप मॉल टाइप, तो उधर था. एंड वी दे सेड कि भाई आप किसी ने मुझे कहा कि सायरा तुम ये चीजें बनाती हो तो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट. मैंने कहा चलो ठीक है हम करते हैं.
स्टॉल वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो वी सेड चलो लेट्स माइट एज वेल डू इट। और हम लोग लिटरली यहीं मेरे इसी लिविंग किचन, लिविंग स्पेस और किचन में हम बैठे हुए कर रहे थे। हम मैंने कहा कि चीज के फ्लेवर्स बनाए, कुछ बनाना ब्रेड बनाई, कुछ और पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई, hummus बनाया। hummus ऑल्सो वी डू इट, वी डू रियली गुड hummus, लेकिन hummus की लाइफ बड़ी छोटी होती है। और मैं देखती हूँ कि लोग जो hummus देते हैं वो पता नहीं कैसे कह देते हैं कि ये एक हफ्ता ठीक रहेगा। सो मे बी वो दे पुट समथिंग इन इट एंड इट लास्ट्स लॉन्गर। सो वो हमने सब किया एंड पीपल लव्ड आवर hummus। मैंने आई यूज्ड टू, आई एक्चुअली इवन नाउ आई ग्रो herbs and vegetables in my own गार्डन। तो नहीं है इतना बड़ा, लेकिन एक साथ वाले प्लॉट पे एक पैच सा है जिसपे मैं लगा देती हूँ। तो उसमें डिल उगता था, और डिल मुझे बहुत पसंद है। और डिल यहाँ की इतना कॉमन फ्लेवर नहीं था, बट डिल इज अ वेरी ऑथेंटिक, क्या कहना चाहिए आपको, फ्लेवर। जो लोग कहीं कभी बाहर के मुल्कों में गए हैं उनको पसंद आता है डिल। पोटेटो सैलेड में डिल होता है, तो मैंने डिल का इस्तेमाल किया, और मैंने बेसिल का इस्तेमाल किया, और फिर मैंने कुछ ऑलिव्स और हैलोपिनो और ये सब चीजें करके तो कुछ फ्लेवर्स ऐसे ही बैठ बैठ के रैंडम बना बना के अपनी दोस्तों को खिलाए। और हमने डिसाइड किया कि हमारा ये फ्लेवर गार्लिक एंड हर्ब जो है वो तो आपको पता ही है वकास, के आपको नींद आ रही है किसी वजह से, तो मे बी यू नीड सम कैफीन। सो बट ये जो है गार्लिक हर्ब, ये तो एक पाकिस्तान का बड़ा फेवरेट फ्लेवर है। यहाँ पे सारे लोग गार्लिक पसंद करते हैं, तो दिस वाज नो ब्रेनर दैट ये तो करना ही था। लेकिन बाकी कुछ फ्लेवर्स हमने और ऐसे डिसाइड किए। फिर बेसिल वॉलनट, अगेन समथिंग विच इज वेरी काइंड ऑफ, जरा थोड़ा सा वो हो जाता है एक्सपेंसिव, लेकिन अच्छा, पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद कंबाइनिंग चीज विद स्वीट थिंग्स, जैसे कि क्रैनबेरी हो या हनी हो या। सो अभी लोगों को ये बात इतनी अच्छी पता नहीं है कि आप चीज को बड़े मजे से मीठी चीज के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने, हमारा ये फ्लेवर बहुत बहुत पसंद किया जाता है, walnut, basil, cranberry. I think you're right about the garlic, but at the same time, garlic was the one that was even in the sauces as well, was not very much available. It's still a very struggling sauce. अगर आप बाहर जाते हैं तो garlic oilies are a very common Yeah. sauces, but पाकिस्तान में आपको नहीं मिलती थी. It could be के imports वाली जो Heinz वगैरह की शायद महंगी ज्यादा थी, तो people didn't pick it up that much. But Mm. I am completely with you. Garlic is that super ingredient. वो Mm. गार्लिक हर्ब इन उसका इन चीज गार्लिक एओली इन सॉसेज, इट जस्ट टेक्स इट टू अनदर लेवल. राइट राइट, बिल्कुल। सो वही है कि गार्लिक हर्ब अभी भी बहुत। और हम क्या करते हैं कि जब बेसिल होता है अवेलेबल तो वी पुट बेसिल इन इट, जब डिल होता है हम डिल डाल देते हैं। तो जो फ्रेश हर्ब है वो उसको एक और अच्छी किक दे देती है, फ्रेश हर्ब। अदरवाइज तो ड्राइड हर्ब ही लोग डालते या हैं, तो हम फ्रेश हर्ब्स भी डालते हैं उसके अंदर। सो सो दैट्स द डिफरेंस। ये व्हेन दिस डे वन हैपेंस, ये एक दिन का आपका लेट्स से आपने वहां पे लगाया फेयर लगाया, सो व्हाट वाज द टेक अवे व्हेन यू वर गोइंग बैक होम के प्रोडक्ट है, लोगों को पसंद आ रहा है, आई नीड टू डू अ बिजनेस, वाज दैट द टेक अवे? और टेक अवे वाज लाइक चलो दिस वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट, we will see, we'll think about it, what we have to do, what was going on your mind days and weeks after that? देखो, ये मेरा पैशन प्रोडक्ट तो था। मतलब अभी तो पहले ये जो फेयर लगा तो इसमें हम वी वर हैप्पी दैट वी वर सोल्ड आउट completely, and we made reasonable money also, जो भी था। सो ये तो अच्छा हो गया, लेकिन एक प्रेशर था मेरे पे, कुछ काम शुरू करना है। उसकी दो वजह थी। एक वजह तो ये थी कि आई हैड रिसेंटली एट दैट टाइम बिकम सिंगल पेरेंट, और मुझे ये लगता था कि with my along with my job I need something else also in, you know, a business or something. लेकिन दूसरी चीज ये थी कि अपने इस टैलेंट को, जो कि इतना वेल रिसीव था, अब ये टेम्पटेशन हो रही थी कि अच्छा अब इसको करो भी जरूर। करना तो है हमने, आगे इसको किसी स्केल पे करेंगे। सो ये डिसाइड तो हो ही गया था कि कुछ करना है इसी फूड में। लेकिन ये नहीं पता था अब कि हम हमस भी बनाएंगे या हम बनाना ब्रेड भी बनाएंगे या हम क्या करेंगे। सो उसमें ये जरूर हुआ कि देन वी सैट डाउन एंड वी थॉट व्हाट वाज इट दैट वाज
the resources that I had, a home-based kitchen, and given the fact that I also work, what is it that I can manage? What is it that I can train people to do? If I don't put up a big kitchen and I'm using my home appliances, so what would be the best thing to do? So वो हमने फिर चूज किया कि हम चीज को ही पकड़ते हैं और उसको करते हैं. So that was this, and उसमें फिर वो भी आ गया जो मैंने आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताई है कि my mother used to do it, तो मैंने Yep. कहा चलो इसी को करें. No, लोग definitely. Yeah, it's a continuation of the heritage as well. हाँ, लेकिन बहुत मुश्किलें पेश आती हैं. एक सिंपल चीज लगती है ना कि आपने दूध लिया और उसको पनीर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन नो, it's a really really tough thing. Even dealing with the suppliers of milk has been a Yeah. nightmare. Yeah. पाकिस्तान तो थोड़ा सा पाकिस्तान तो थोड़ा सा इनफेमस भी है इन्हीं चीजों के लिए अबाउट व्हेन द रॉ मटेरियल जो मैस में आता है, चाहे फ्रूट्स गो इनटू योर स्टफ दैट यू मेक और द डेयरी गोज इनटू इट, उस पीछे से क्वालिटी को कंट्रोल करना इज कमोडिटीज, वेरी हाँ, कमोडिटीज जो है ना, कमोडिटीज के ऊपर कोई ना रेगुलेशन है, ना कंट्रोल है, राइट. ना कोई सिस्टम है. मतलब जब मेरे जैसा एक बंदा चला जाता है, आई anyway, I don't know if you want me to talk about it or not right now, No, no, but no. Yeah. We would love to. so I had worked in my previous life, as I say. I used to work. I had worked on big projects जो कि मुझे जिन्होंने field work बहुत मैंने किया उसमें. So I went into the interior of Punjab and Sindh and worked with salt suppliers. I used to work in a project which was यूनिसेफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, जो ये आयोडीन मिला नमक का प्रोजेक्ट था. तो उसमें हमने ब्रांडिंग भी की उसकी और मार्केटिंग भी की और सॉल्ट सप्लायर्स को भी मिले. तो वो सारा मेरी बैकग्राउंड में था एंड आई थॉट कि ये तो एक बड़ी आसान चीज़ है कि मैं जाकर दूध वालों से मिलूंगी और उनसे बात करूंगी कि भाई किस तरह से करना है, आप हमें दूध की सप्लाई मैं सोर्स से करना चाहती थी बिकॉज कॉस्ट्स वर वेरी हाई जब आप मिडिल मैन के थ्रू लेते हैं और गवाला आपको घर में आके दे के जाता है या किसी दुकान पे. तो बट 3-4 लोगों से इट इट टर्न्ड आउट दैट दे रिसीव्ड मी एज समबडी जिसको कि उन्होंने हाईएस्ट प्राइसेस पे ही दूध बेचना है. और उन्होंने मुझे बिल्कुल बीच में और 2-3 लोग आ गए जो कि आपसे लाखों रुपए, लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज दे वांट फ्रॉम यू in advance, and then they say that we will sell our milk to you at this rate for the entire year. And this happens here in this market, but it was something so tough. And two or three people said that हाँ हो गया सब, हमने आपके साथ ये कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फिर वो बैक आउट कर गए. सो अभी तक आई एम एक्चुअली affected by the price of milk, which I can't make them understand that I am not a buyer जिसको कि आप घर पे 2 किलो दूध का रेट जो है वो ही मेरे पे लगाएं. सो वो एक huge big rate मुझे देते हैं, and they will not come around to having a yearly contract with me. So it's a very very tough situation. और कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि ना कोई गवर्नमेंट की कोई तरीका है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं, ना उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ है. तो दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बाय रॉ मटेरियल इज डिफिकल्ट. Yeah, no, and I think from one of the trends that we are getting when we are asking different founders on the podcast is कि जो 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 legacy markets हैं, of course the raw material creator, they are finally, not all of them, but some of them are finally starting to realize that it is a big play here, and they are now starting to appear as well. Especially, let's say, in the packaging stuff. पहले 5 years ago, बड़े-बड़े packaging के नहीं exist करते थे, अब आना शुरू हो गए, and that is becoming a full business in itself. So I think पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री तो इनफेमस है, वो तो आपको पता है कि इट्स अ लेगेसी इंडस्ट्री. आई थिंक उसके अंदर आई डोंट नो, जैसे आपने फार्म फील्ड्स का कहा है कि दैट माइट बिकम अ प्लेयर which is modern, which is better.
हमारे यहाँ पिछले दिनों हरियाली पे ही एक हमने पैम्फलेट लिया था एक से, जो चिकन एंड एग्स, इन दो चीजों के अंदर हमारा कोई मिलेनियल जनरेशन का ही बच्चा है जिसने कोशिश की है, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस। जो कि थोड़े से हायर प्राइस्ड एग्स हैं, हायर प्राइस्ड पर किलो चिकन है, बट यू नो नॉट केज रेज, रेज्ड इन द ओपन, happier chickens, chicken that is coming from a happier chicken and happy eggs. So let's see, but थोड़ा सा मार्केट के अंदर मूवमेंट नजर आना शुरू हो गई है। एंड वही जैसे आपने कहा कि हरियाली टाइप इवेंट से ये लोग भी जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है टू रीच आउट टू न्यू customers के to make them test something that you're bringing into the market. That is right. लेकिन देखो एक चीज जो हम लोगों को समझ नहीं आती वो ये है कि या यहाँ पे आप छोटे होम बेस्ड बिजनेसेस करें, जैसे कि बेक्ड में लोग चीजें सप्लाई कर रहे हैं, Yep, या ये में या फिर आप स्केल पे उनको करें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कॉटेज या स्मॉलिश इंडस्ट्री लगा लें। उसके लिए यहाँ पे कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं अपने इस काम को अपने होम किचन से निकाल कर बाहर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसको अभी इस फैक्ट्री स्केल पे नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही करूँ, अदरवाइज फैक्ट्री पे जाने से तो वो इट विल टर्न very very commercial, and I don't want that. I want to keep the niche characteristic जो इसका एक है, एक छोटा home based pure additives के बगैर personally supervised product. I want to keep it that way. But और मैं proof of concept भी कर चुकी हूँ कि well yep, received है, अल्फताज पे भी बिक रहा है और बेक्स पे भी बिक रहा है और क्लब्स में भी बिक रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं, मुझे ये नहीं पता कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आई मीन ठीक है, आई amazing, एम ट्राइंग टू ग्रो इट, बट देयर इज नो गाइडलाइन। मैं सीख जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे सामने नजर आ रहा हो कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज चीज इज नॉट लाइक किमची। चीज इज समथिंग जो कि एक लार्ज स्केल पे लोग अपने किचन्स में इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ लार्ज ऑडियंस फॉर इट, देयर आर रेस्टोरेंट्स एंड देयर आर, मतलब होम यूज में भी आ रहा है। सो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं आगे जाने को, ये मुझे नहीं समझ आती कि गाइडलाइंस इसके लिए हमारे I पास think कहाँ you से। have I think you have raised a very important point. SMEs जो होती हैं, especially if I look at the Singapore market, 90% of the employment has been created by SMEs in Singapore. These are not multinational large scale companies. These are Right. not solo. So of course solopreneurs are there, one man entrepreneurship or family businesses are there, but 90% of the work, the employment has been created by SMEs in Singapore, which means के you're right के home based और factory level के जो बीच में Right. ecosystem है, दैट इकोसिस्टम की समझ ही नहीं है किसी को। तो जिसने थोड़ा बहुत इधर उधर से अपने रेफरेंसेस से कर लिया तो कर लिया, बट लार्ज स्केल अडॉप्शन के लिए उस इकोसिस्टम की पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग नहीं एग्जिस्ट करती। That's right. That's exactly where we stand right now. जो आपने इसको बड़ा अच्छा नटशेल में वर्बलाइज कर दिया है कि हम बिलाल एंड आई आर बोथ वी आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक, एंड देयर इज डिमांड। अ लॉट ऑफ पीपल टेल अस कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये द बिजनेस इज आस्किंग फॉर ग्रोथ, इसको ये करो वो करो। तो अभी समझ नहीं आ रही है हमें कि कैसे। सो अबाउट दैट ग्रोथ, सो व्हेन यू स्टार्टेड, तो हो गया हमारा फर्स्ट इवेंट भी हो गया, द फेयर हो गया एट गैलरिया। Coming into the market, what was the first batch you had to produce and where it had to go? How did you secure that कि अगर वो अल्फता था तो कैसे अल्फता के साथ सिक्योर किया कि मैं इतने पीसेस ऑफ चीज दूंगी, या जिसके साथ भी था, so what was that experience like? So I'll be very very open and frank about this, because ये भी एक इशू है जिसको कि मैं सामने लाना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन सो अल्फता मेरा ये ख्याल था कि भाई हम किसी रिटेल पे जाएं, क्योंकि बेसिकली आई वांटेड टू सी कि हमें रिस्पांस क्या मिलता है रिटेल मार्केट में। और रिटेल मार्केट में लाहौर में आपको पता है अल्फता इज, 5 साल पहले तो वही था, अब जलाल सन्स हर Yeah, जगह नजर आता है, लेकिन and पहले तो नहीं था। तो so I had to ask someone in my family who is well connected and who knows people personally in Al Fatah. She's my cousin, and she's very helpful, and she said to me कि अच्छा तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और मैं उन्होंने बिल्कुल प्योरली उनकी सिफारिश की वजह से
मैं अल्फता में अपना सामान मैंने दिया। और सो अल्फता ने हमें एक स्टेटस दिया जिसको वो लाइसेंसी कहते हैं, वेयर यू पुट योर प्रोडक्ट इन देयर ऑन देयर शेल्फ्स, एंड यू देयर इज दे डू नॉट लुक आफ्टर योर प्रोडक्ट, लाइक लुक आफ्टर मीनिंग दैट वो ये नहीं बता हमें, अगर हमारा प्रोडक्ट कोई साइफन आउट कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें हमें ही खुद ही ख्याल रखना है उसका कि हमने कितने पीस दिए थे, कितने बिके, और कोई गायब हुए या रिटर्न हुए, क्या हुए। दे डोंट लुक आफ्टर योर प्रोडक्ट, वो उसके लिए वो नहीं वो करते हैं। लेकिन जब उसकी कस्टमर बिल्ड होने शुरू हो जाएं, देन द सेल्समैन आर वेरी वेरी कीन कि वो प्रोडक्ट आए, और फिर वो आपको कॉल्स करते हैं कि आप लेके आओ। तो हमने शुरू में ही, जब हमारा वही खास चीज वाला भी प्रोडक्ट था, वो भी, उसकी भी एक मार्केट बन गई, क्योंकि देयर वर पीपल इन अल्फता हुसैन Right. चौक एंड अल्फता गोल्ड क्रेस्ट, उन्होंने अपने 3 कंपनी ओन्ड स्टोर्स में हमें कहा आप दें, विच वाज गोल्ड क्रेस्ट, हुसैन चौक एंड वन मोर आई फॉरगेट, जौहर टाउन आई गेस। तो इन तीनों में हमने दिया। और इधर सबसे ज्यादा गोल्ड क्रेस्ट में वो जाता है कॉन्शियस अवेयर कस्टमर, और उन्होंने वहां सबसे ज्यादा हमारा था टर्नओवर। और फिर हुसैन चौक और उधर, सो उधर हमने दिया। और लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे देते थे हम, और सिर्फ फ्लेवर, जैसे मैंने आपको बताया, भी हमने प्लेन बनाना ही नहीं शुरू किया था। तो फिर उससे हमें ये इनकरेजमेंट हुई कि ये तो बगैर किसी मार्केटिंग और किसी भी उसके ये चल रहा है। और फिर हमने अपनी सारी बाकी की चीजें जो मैंने आपको बताई की। लेकिन एट दैट पॉइंट, जब हमने पीपल ट्री जो है वो बना ली कंपनी, तो हमें फिर हम ये चाहते थे कि अब पीपल ट्री बन गई है, तो पीपल ट्री का मतलब है कि हम ऐसी जगहों पे भी दें, नॉट जस्ट अल्फता के 3 स्टोर्स। अल्फता ने फिर हमें अपने 12 स्टोर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उन्होंने हमें कहा आप फैसलाबाद भी भेजें, आप सियालकोट भी भेजें, और आप इस्लामाबाद भी भेजें, इन 3 जगहों पे भी भेजें। बट दे ऑफर्ड नो असिस्टेंस इन कैरिंग इट फॉर अस टू दीज प्लेसेस, एंड इफ दे हैड, इट वुड हैव बीन ग्रेट, बिकॉज उनकी तो जाती ही हैं गाड़ियां, और उसके अंदर हमारा भी प्रोडक्ट ले जाएं और हमें चार्ज कर लें। लेकिन हमें एक पूरी कुरियर कंपनी को एंगेज करना पड़ा था, एंड अगेन आवर साइज वाज रियली स्मॉल, एंड it was something very difficult for us to do at that time. So उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड वी अप्रोच जलाल सन्स। और जलाल सन्स में जब हम गए, एंड सारी उन्होंने हमें माई प्रोडक्ट्स बड़ी पसंद की और वो सब, बट दे आस्क्ड फॉर 5 lakhs एंट्री इनटू जलाल सन्स पर आउटलेट। सो आप ये सोचे Oh, कि wow. हाँ, तो फिर वो तो इट वाज समथिंग जो कि वाज अ नॉन स्टार्टर। तो हमने फिर कहा कि ये तो हम कर ही नहीं सकते। आज भी अब मैं जलाल सन्स को कंसिडर ही नहीं करती, हालांकि वो हर जगह है, और मैं चाहूँ तो ये चीज हर जगह पहुंच जाए, लेकिन आई हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। वही बात है कि अगर आपके पास पहले ही इतने पैसे हैं, तो फिर आपको ये छोटा सा चीज बनाने की क्या जरूरत है भाई। फिर अगर आपके पास इतने पैसे हैं, तो फिर आप तो कोई कंपनी बनाएंगे बड़ी, नेस्ले के मुकाबले की। तो 5-5 लाख रुपए दे के आप अपने यू नो नीश प्रोडक्ट को उनके शेल्फ पे रखवा सकते हैं। सो इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस, आई मीन इट्स So स्टूपिड। no, I understand. So for the small business, the passion, the one person or a couple business, unko starting from home, it doesn't really make sense for them because economically it doesn't justify the cost. इट For डजंट, जिला, इट डजंट, या आई थिंक, और थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो हाइपर मार्केट्स हैं उनका क्या सीन है, कारफोर्स एंड द मेट्रोज ऑफ लाहौर, उनका कुछ राइट। और तो मॉडल। उनको हमने हमने हम गए उनको हमने, बल्कि इम्तियाज जो एक स्टोर है, जो कराची का स्टोर है जो यहाँ आया है, वो भी आपने देखा, फिनोमिनल ग्रोथ उनकी, बहुत बड़े बड़े उन्होंने बना लिए स्टोर्स। हमने उन्हें भी किया। तो मेट्रो और कारफोर में ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो आपको किसी पता नहीं किस दफ्तर में जाके पहले उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर वो वहां से किसी और को भेजते हैं। सो वो बहुत बड़ा सिस्टम है। हम शायद उसको फिर भी करने की कोशिश करेंगे किसी वक्त, लेकिन उधर हमें ये भी लगता है कि कारफोर और मेट्रो में, कारफोर के तो अपने ब्रांड्स आपने देखे ना, उन्होंने तो हर चीज का अपना ब्रांड बनाया हुआ है। और जो ये है मेट्रो, इधर लोग जाते हैं लुकिंग फॉर लोअर प्राइसेस। सो मुझे ये लग रहा था कि हमारे जो 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं समझती हूँ कि बहुत लो प्राइस तो नहीं है, कहीं मिडिल में है। आई डोंट नो क्या होगा, इस पे थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी है, और वो हम करेंगे। अभी तो वी आर डीलिंग विद द ग्रोथ ऑफ बेक्ड, जो कि इतना, अब दे आर ओपनिंग द 4th आउटलेट इन यप गुलबर्ग। यप
हाँ, तो वो How भी जो did है। and when did Baked and Tayyab kind of these stores came into your radar? कि यार यहाँ से let's see about them and how did you approach them? सो बेक तो हम कोई 3.5 साल से बेक्ड को दे रहे हैं। जब से हम शुरू किया तो उसी वक्त अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज सप्लाइंग टू बेक, जब बेक बिल्कुल एक लिटिल लिटिल कॉरिडोर ऑफ अ स्टोर था पीएफ मार्केट में, उन्होंने बिल्कुल वो एक छोटा सा कॉरिडोर सा ले लिया था और उसमें उन्होंने एक चिलर रखा हुआ था और वो इतना शोकेस, उस वक्त से हमने देना शुरू किया वहां पे। और सो उनको उनके साथ ही हमने भी उनके साथ ग्रो किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद देम। वो हमारे साथ बड़ी अच्छी उनकी वो है इंटरेक्शन। और सो वो वहाँ फिर उनका दूसरा स्टोर खुला जो फेज 6 में था, और फिर तीसरा जेड ब्लॉक, और अब वो गुलबर्ग में खोल रहे हैं। और तैयब इज लाइक वी हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस द ओनर ऑफ तैयब। मैंने बहुत दफा उनको अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने थोड़े से मतलब डिफिकल्ट था उनके साथ वो करना। सो हमारे साथ जब मायरा ने काम करना शुरू किया, हमारी जो मार्केटिंग को देखती हैं, उन्होंने फिर हमारी मदद की, एंड शी गॉट इट 1 मिनट में हो गया। और उनको इतने हमारे प्रोडक्ट पसंद भी आए, और वो सब Wow, इट्स बीन beautiful. इट्स रादर न्यू। तैयब के साथ कोई 6-7 महीने हुए हैं कि हम काम कर रहे हैं। Uh, so Saira, as you started, now the distribution channels were getting into the place. The biggest challenge comes is कि अब हमने प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैसे रैंप अप करनी है, या कैसे हमने पार्टनरशिप में कोलैबोरेशंस करनी है, कैसे फाइनेंस मैनेज करना है, कैसे, जैसे आपने भी मायरा का जिक्र किया है कि मायरा इज अ मार्केटिंग रोल। सो एट नाउ लुकिंग इन 2025, अब कितने लोग हैं एसोसिएटेड विद यू एंड हाउ हैव यू रैम्प्ड अप दिस capacity of, let's say, your team? So, Vakas, this is the area which needs a lot of work, and that's exactly what I was talking about. कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। मैंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है कार अंदाज इस्लामाबाद में, जिनको कि मैंने कोई साल पहले एक एप्लीकेशन दी थी फॉर अ लोन, बिकॉज हम यही चाहते हैं कि हम इसको बढ़ाएं बिजनेस को किसी तरीके से। बट उनकी कुछ टर्म्स ऐसी थी कि वी डिडंट pursue it further। बट अभी हम फिर सोच रहे हैं कि इस तरह से कुछ करके वी आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट आउट ऑफ द हाउस। अभी तो होम बेस्ड ही है, और होम बेस्ड भी इज वेरी एफिशिएंट। आई हैव अ टीम ऑफ about 4 people only that runs the whole show with me. So there is Rimsha, who is the chief, who's the chef basically, who knows all the recipes, and she sometimes does such fantastic innovation with things that, and she tells me that इस तरह से मैं इसको ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा, because she works on it every day. And then there is the person who runs the distribution। कहीं भी आपको direct customers भी बहुत से हमें orders देते हैं, तो वो देना हो तो वो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का वन मैन शो है, जो कि उमर है। So Rimsha and Umar, and then there is Asifa, who is the sous chef. You can, she is the assistant who is helping out and is now learning fast. So इसी तरह करके एक आध और लोग हैं। सो हमारे कोई 4-5 लोगों की ये टीम है जिससे कि हम ये सारा काम करते हैं। बट अगेन ये चीज, और बाकी के जो ये फाइनेंस के अफेयर है सारा, वी हैव अ पर्सन हु इज अ पार्ट टाइम फाइनेंस पर्सन हु इज नॉट डूइंग मच, बट वो हमारी बस ये चीजें वो करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर्स, मंथली एक्सपेंस एंड मंथली reconciliation ऑफ कौन सी चीज कितनी, किसने कितनी ली, क्या हुआ, क्या इनवॉइस थी, कैसे थी, क्या था, क्या रिटर्न्स थी, कभी एक्सपायर भी हो जाती हैं चीजें। तो दैट इज समथिंग दैट इज मैनेज्ड एंड मेड बाय मी। वो मैं सारा करती हूँ। बट आई स्टिल फील दैट गुड फाइनेंस और अकाउंट्स का बंदा जो है वो क्रूशल है। किसी भी बिजनेस कितना छोटा ही क्यों ना हो, आपको उसकी कंप्लीट समझ होनी चाहिए कि आपके हेल्थी बिजनेस की क्या इंडिकेटर्स हैं, जो कि हम लोगों को नहीं पता होते इतने। और स्पेशली अगर आप घर से एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो, एंड देन यू डूइंग मल्टीपल जॉब्स,
So it becomes very, very tough sometimes to divide the expense. I Are mean, to look at the expense separately Yeah. and see, Are you yeah, are you still doing the full-time job as day job as well? I'm doing the day job. It's not all 5 days a week, but it's 3 to 4 days. 3 to 4 days a week है जो मैं करती हूँ, लेकिन जब सुबह आप घर से 8 बजे निकल जाते हैं या 7:30 बजे या जब भी, और फिर आप शाम को 3-4 बजे घर आते हैं, तो वो तो दिन फिर खत्म हो जाता है। और फिर इसी तरह एंड देन यू ब्रिंग होम अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट जॉब एंड समटाइम्स वर्क, समटाइम्स मीटिंग, समटाइम्स वीकेंड पे कोई इवेंट हो गया, कुछ हो गया। सो अगर आप पार्ट टाइम कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें काफी ज्यादा आपकी थॉट्स और टाइम लग रहा होता है। सो ये इस वजह से मुझे लगता है कि ये बिजनेस को भी मैं पूरा अच्छे तरीके से तब स्केल पे कर सकूंगी व्हेन आई एम डन विद दैट जॉब एंड Yeah. आई एम ओनली डूइंग दिस, बट फॉर दैट आई हैव टू हैव अ solid plan and I'm in the process of making that plan Uh, currently. Saira, we love it. We love how ambitious you are. You're such an inspiration. एक पूरा मतलब actually proper full working hours पे एक job भी चल रही है, plus business है जिसके अंदर भी team grow करती जा रही है. And even when we look at your Instagram, it's a very healthy Instagram. Of course, you have about 5,000 plus followers, but the quality of the pictures, what you are conveying through it, product के बारे में information and how regularly it is updated. So I think looking from outside, it seems like that at one point in time you have built up the systems. A lot of work is happening, and just in a short span of 4 or 5 years now from that first, let's say, fair all the way here कि अब बेक के साथ साथ यहाँ ग्रो हो रही है, अल्फता के अंदर जा रहा है, this and that. Uh, how does it feel to be? Do you, or rather, now when people ask you, what do you introduce yourself as an entrepreneur? You introduce yourself as a person जो आपकी day job है उससे identity देते हैं. What do you say? What do you do? I mean, I think for a second every time people ask me, but then you know, entrepreneur is something that I'm very proud of because this Amazing. is something जो हमने बिल्कुल I mean, I could never imagine कि ये इतना अच्छा हम कर सकते थे जो हम कर रहे हैं. So yeah, that's my identity now. Also what I do in terms of education, I'm very, very happy with that. In fact, बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो वो जो मुझे वहां से थोड़ी सी थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सी एक इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन मिलती है. Doing I work with teachers. I do teacher training and teacher development and curriculum development. Amazing. For So for which programs? I do for the baccalaureate primary years program, जो कि IB का PYP है. Okay, yeah. IBPYP की teacher training and all that. That are you associated with one institute in Lahore? Yes, currently I'm associated with the Trinity School. जो Trinity is the new name of Shoifat. Shoifat मैंने अभी शोएफात का रिसेंटली नाम है, ज्वाइन किया. right? हाँ, Oh, I did not know शोएफात. that. हाँ, शोएफात जो है वो was bought by some people and they renamed City School है जो हमारा एक chain of schools, a big company, आपने नाम तो सुना होगा. So they with another partner now own that those premises और उसका नाम उन्होंने Trinity School रखा है. Right. No, IB is I'm very happy to hear that IB programs. I don't know specifically about PYP के अंदर क्या curriculum and so on, but the DP के अंदर diploma program में जो curriculum है and the kind of the way they groom students over 2 years, I'm a big fan of that. I think it हाँ, is as big a leap as जो A levels और FSC के बीच में difference है, उतना ही ज़्यादा in my opinion the difference is between DP and A levels in the mental development of a kid. काफी ज्यादा है. मगर उसकी फाउंडेशन तो PYP है. I mean that's the real program. I, But I, DP I, is yes, DP जो है वो यूनिवर्सिटी
कि एप्लीकेशंस के लिए इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, अगर बच्चों ने किया हो तो उनको काफी Have क्रेडिट। you have your kids who are now 22, 23 years old, have they started reaching a stage where they are becoming a थोड़ा आउटसाइड से साइड सोशल मीडिया हो या कुछ हो, पीपल ट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ, और देयर इंटरेस्ट, और नॉट येट, दिस इज नॉट समथिंग दैट दे वांट बच्चों टू? का हाँ बच्चों का जी। बच्चों का ये है कि हाँ, वो मुझे काफी ज्यादा फीडबैक देते हैं फ्लेवर्स में, अपने बेटे को खास तौर पे, बिकॉज नाउ मेरू हैज बीन अवे फॉर 3 इयर्स, पढ़ाई के लिए वो गई हुई है। तो कभी कभी वो वीडियो भी अपनी को एक, उसको मैंने कहा मुझे अपनी एक बना के दो, बट हालांकि शी डज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया ऑन हर ओन, बट this she was a little shy to promote my product, तो she did make a video, but इतनी वो हमें पसंद नहीं आई, मुझे और मायरा को। लेकिन yes, they endorse my product a lot, उनको बहुत पसंद है, वो बड़ा encourage करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट मैंने उनकी स्पेस पूरी, जो जगह सुबह से लेकर दोपहर तक चीज हम बनाते रहते हैं। So they are very very cooperative in all of this, that they, I feel कि ये यही उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए, कि वो they keep this in priority। कभी हमें डिलीवरीज करनी हो तो हैदर इज वेरी वेरी willing to do that for me। कई दफा डायरेक्ट कस्टमर्स को चीजें देकर आया है, पास्ट में तो बहुत जाता था, अब वाओ, जरा वो पढ़ाई ज्यादा हो गई है तो नहीं इतना हो रहा। दिस इज सो लेकिन स्वीट। जी, तो बस ये यही उनका हो सकती है फिलहाल तो। दे आई मीन 22 year olds think that what they are doing, I mean उनको करना भी चाहिए, उसी पे फोकस। या या Saira, coming to the end, Instagram, social media and Instagram, how has they played a part in building people tree, reaching out to the end users for the business? इनकी कोई आपको significant value नजर आई है business में, कि इतना ज्यादा impact नहीं है as compared to the percentage of customers that you have through the distribution channels, जैसे आपने बताए हैं बाकी सारे? नहीं, मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम, जब हमारी बेक्ड पे भी सेल तेज होती है तो वो भी इंस्टाग्राम का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इवन अलपता पे भी जो लोग इंस्टा मतलब a lot of people I know who get in touch with me because they like our story, या वो कुछ देखते हैं और फिर हम मुझे कहते हैं कि अच्छा वो तुम्हारी फलां चीज हमें भेज दो जरा, मतलब उसी से वो थोड़े से इंस्पायर हो जाते हैं कि चलो जी, might as well place an order। So yes, Instagram has played a very very big role। I think this is a very, very important nugget that you've shared with people. Ke it's not just ke Instagram or social media are supposed to be for direct sales channel, जहाँ पे brand awareness यहाँ पे बनती है, लेकिन sales कहीं और, जो के secondary channels हैं, which are the shelves in different supermarkets, वहां से sales बढ़ती है. So I think Instagram, you're absolutely right in that way, कि brand awareness के लिए it is one of the best. Was there any Absolutely। particular, was it, has it happened that any one particular reel or a particular post that really went work for you, or ऐसा नहीं है कोई story अभी? No, not really. We are actually trying right now. We did a videography session about a month ago, और उसमें हमने कुछ थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू और ऐसी चीजें, और घर पे मैंने चीज बनाते हुए वो सारी हमने चीजें रिकॉर्ड की हैं। एंड आई थिंक मायरा इज स्टिल वर्किंग ऑन द एडिटिंग ऑफ इट, और वो जैसे हम वो रिलीज करेंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि उसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन अभी तो बस ये है कि जनरली पीपल लाइक यू सेड दैट द पेज इज वाइब्रेंट, दे Yep. एंजॉय लुकिंग एट द वीडियोस, तो वो सब है, वो सब उससे बहुत फर्क पड़ा। We'd actually definitely offer Myra a program that she can take from us within our brand. It's eternal, just for the founders. Lekin now that you're saying that Myra is in that stage where she's experimenting with social media, so we are running 8th March को I think शुरू हो रहा है. So from 8th March or the next 6 weeks, 2 hours classes on a Saturday, where we're basically teaching all about the insides of the social media and marketing, and especially while using AI tools as well, जिसकी वजह से ये सब कुछ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है. So So I आप think बताइएगा वो तो, आई थिंक I आई would विल आल्सो definitely, बी, आई मीन आई वुड लाइक टू बी done. अवेयर ऑफ इट।
कभी करने I का मौका मिले या ना मिले. no, I will definitely do that. Saira, this has been lovely. Let us know 2025 mein, what are you looking forward to that is giving you excitement now as you look into the next 2 years. नेक्स्ट 2 years के लिए तो जरा ज्यादा दूर की बात है, लेकिन 2025 में वी एक्चुअली नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग टू थिंग्स. एक तो ये कि हम कभी कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सेप्ट फॉर द फ्लेवर्ड कॉटेज चीज, लेकिन थिंग्स लाइक cheesecake, जो कि is the healthier version of the regular sugary creamy stuff. हम अपने चीज का चीज केक, वो हम एक चीज सोच रहे हैं. Then I'm working on, I have actually made a product, developed a product, जो कि truffles हैं, वो हम अभी करेंगे अपने लॉन्च. सो इस तरह से हम ने 2-3 वैल्यू एडेड चीजें ऐसी, जो कि बिकॉज वी ऑब्जर्व पीपल. द अदर डे वी वर एट बेक्ड एंड वी वर ऑब्जर्विंग पीपल दैट वो सारा लाहौर जो है वो मीठी चीजों का दीवाना है. वो सब लोग जो हैं, और जो ये जितने यंग बच्चे हैं, ये सारे जाके सिर्फ वो मिठा भरा हुआ है उनका जो शोकेस एंड फ्रीजर विद ऑल द स्वीट थिंग्स इन द वर्ल्ड. और वो मीठी. सो आई एम नेवर गोइंग टू यूज शुगर इन माई प्रोडक्ट. ये तो मेरा अपने से वादा है कि मैं उसमें चीनी नहीं Thank you. डालूंगी. Yeah. Thank you so So, much for that. Thank you. So we have particular in my own life, me and my wife, we have completely cut sugar from our life except for Sundays, which are our cheat days. So we are always on a lookout for anything that is sugar free. हाँ, सो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जो कि हम हनी फॉर एग्जांपल मे बी सो हम लोगों ने ये सोचा है. अभी रोजे आ रहे हैं, तो उसके लिए वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग डेट्स फिल्ड विद चीज, क्योंकि डेट्स इज समथिंग जो कि हर वक्त लोग खाना चाहते हैं रोजों में. आई डोंट नो व्हाई, बट दे लव इट. सो सो इस किस्म की चीजें, बेसिकली केटरिंग टू द मार्केट पल्स जो है मार्केट की, जो कि अभी तक मैं नहीं कर रही थी. ऑनेस्टली आई वॉज डूइंग व्हाट आई वांटेड, लेकिन अब मैं मार्केट की कुछ नीड्स को भी सामने रख रही हूँ, जो मुझे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है मार्केट की पैलेट को अपील करने के लिए. क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन उसका हमने कोई ना कोई मिडिल कोर्स निकाला है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. I think this is all fascinating and all the things that you're mentioning. Yeah, Anna, this only had to come this many years into the business because all these are the scaling problems. These are not starting problems. Starting problem was you are passionate about something, you want to do it, how you can do it at scale, and how you can reach out to distributions where people can buy and people can say good things about it because people are loving the product. एंड उसके बाद फिर स्केलिंग फेज के अंदर वो रमजान का ट्रेंड आ रहा है, लेट्स गो फॉर द रमजान ट्रेंड और व्हाटएवर द ट्रेंड. दीज आर ऑल द स्केलिंग प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक वी गोना बी हियर with you throughout this journey as either your consumer and on and off through what we have learned here would be sharing into our community as well, and hoping Thank you. that more and more people keep trying people's cheeses. Thank you so uh, much. Guys, so coming to an end, this was lovely. This is what they say that the new Pakistan is. People like Saira who are driven by passion. She had something that she loved consuming all through her life. And she's like, yes, if she loves it, then chances are some of you guys love it. Other Pakistanis would love it. And she created a product that is as good or better than what we can import. And this is the new Pakistan where quality, where love, where soul, all these things are being added in the products that founders are making. You can, of course, find this podcast on the YouTube channel in a video form, otherwise Spotify and Apple Podcast in the audio form, but also as a case study on our website, kabil.school. Wherever you try People Trees cheese, do give a shout out to Saira and People Tree. I will read out the Instagram as well. It is a People Tree. So A, the letter A, then People, People, and TREE. That's the Instagram handle. Do check it out. Do follow. Do give them a shout out. Saira, Thank you. how was it for you? I really enjoyed talking to you, I think, and I was able to
review the entire business myself also over the years. So thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, Saira.